students, Digital Maths has brought life process part 4. Up to now, we have gone through the introduction part of class 10, chapter number 6, part 1, part 2, part 3. Clear? Nutrition system, respiration system. Now, this is part 4 for circulation system on digital maths. Go through each and every part properly so that you can correlate, you can gain the knowledge of these chapters properly. Clear? See, main thing what I want to convey is that in this such academies, see, your test would be, your exams would be conducted as per required time only. So prepare well before this. Clear? So you will prepare, so you will get the knowledge, and then when the classes begins, you can get that knowledge and recollect, revise each and every part properly. Clear? So this is class 10, chapter number 6. With the contents I am going, what are to be gone through in this content. How transportation takes place, कैसे transportation होता है. Clear? Our pumping organ, as we know, that is heart. Why left and right part of the hearts help human being? Means how? We can say separation is there, left and right part of the heart. So how it helps human being? What is double circulation? Blood vessels, maintenance by platelets, lymph system, and transportation in plants. These are the points which we are going to cover in this video. हम लोग एक एक पार्ट को प्रॉपरली देखेंगे. क्लियर? So first, how transportation takes place. How? What do you think that how transportation is taking place in our body? See, in our body, each and every nutrients, minerals are taking or transporting or transported from one place to other through the blood. So main transportation, you can say connective tissue is blood, as we have studied in 9th standard. आपने 9th standard में पढ़ा था कि blood is a connective tissue. So blood के थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्टेशन होता है. So blood transports food, oxygen and waste material in our bodies. Blood being fluid connective tissue. लिक्विड है जिसके अंदर हम लोग फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इन ऑल ओवर द बॉडी. क्लियर? पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है. ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड. द प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म. क्लियर? प्लाज्मा है सेल के अंदर, से उसके अंदर जो भी सेल्स है वो प्लाज्मा ब्लड के अंदर सस्पेंड है, चाहे either it might be red blood cell, that is RBC, WBC or platelets. Everything is suspended in plasma. Clear? प्लाज्मा भी कार्बन डाइऑक्साइड, फूड और नाइट्रोजनस वेस्ट को डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज कैरिड बाय RBC, that is red blood corpuscles or red blood cells. Many other substances like salts are also transported by the blood. Blood के थ्रू बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस भी ट्रांसपोर्ट होते हैं. We thus need a pumping organ to push the blood around the body, a network of tubes to reach all the tissues and the system in a place to ensure that the network can be repaired if damaged. मतलब देखो ब्लड सब कुछ कर लेगा, इट इज देन कि वो ट्रांसपोर्टेशन कर देगा, लेकिन उसके लिए एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए, दैट इज हार्ट. अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, दैट इज आर्टरी एंड वेन्स और कैपिलरीज, and a system in place to ensure that the network can be repaired if damaged. अगर कुछ नुकसान होता है तो रिपेयर हो सकते हैं, that is platelets. वो काम होता है प्लेटलेट्स का है, या फिर बोल सकता हूँ मेंटेनेंस सिस्टम का है. क्लियर? कोई भी लीकेज है तो लिम्फेटिक सिस्टम है, रिपेयर या कुछ भी होता है तो वो मैनेज करते हैं. क्लियर? सो दिस इज हाउ ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस इन ब्लड. नाउ व्हाट इज आवर पंपिंग ऑर्गन? हार्ट. द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज अ बिग as big as our fist. मतलब एक मुट्ठी की जितना ही उसका हार्ट की साइज होती है, फिस्ट. क्लियर? ये चीज याद रखना, इट इज as big as our fist. Because both oxygen and carbon dioxide have to be transported, the heart has different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. So देखो हमारी बॉडी में एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड भी होते हैं जो दूसरे सेल्स से आते हैं अलग अलग जगह से, और ऑक्सीजन वाला ब्लड मींस ऑक्सीजन रिच ब्लड. तो ऑक्सीजन रिच ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्लियर? सो दोनों को अलग अलग रखने के लिए हमारे हार्ट्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ चैम्बर्स होते हैं. कितने चैम्बर्स होते हैं? इफ यू नो कितने होते हैं? यस ऑफ कोर्स, ह्यूमन बीइंग के हार्ट में 4 चैम्बर्स हार्ट होते हैं. डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ चैम्बर्स बदल सकते हैं, पर ह्यूमन बीइंग के अंदर 4 चैम्बर्स हैं.
और एक चीज, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। ऑब्वियस सी बात है, लंग्स सारा प्योरिफिकेशन करता है, जो हमने लास्ट पार्ट में देखा था रेस्पिरेशन में कि वहां पे एल्वियोली के अंदर जाता है डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एल्वियोली क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के उसके अंदर ऑक्सीजन फीड करता है। क्लियर? सो दैट इज डन। सो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो लंग्स तक पहुंचना जरूरी है। उसके बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के ऑक्सीजन फीड किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। यानी ये ऑक्सीजन ब्लड हार्ट तक आता है और हार्ट क्या करता है, पंप करके पूरी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है। कैसे, हाउ, दैट वी आर गोना डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आर पंपिंग ऑर्गन, दैट इज हार्ट। देखो एक चीज याद रखना, मैं जो बताता हूं समझना, चैम्बर्स वाइज टोटल देर आर 4 चैम्बर्स इन हार्ट, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस आर दी 4 चैम्बर्स। क्लियर? ये चीज याद रखनी है आपको, 4 चैम्बर्स। अब नॉर्मली क्या होता है हमारी बॉडी में, आर्टरी एंड वेन, 2 ट्यूब्स है, या मैं बोल सकता हूं नर्व्स है। सो आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करता है और वेन जो है मीन्स प्योर ब्लड मतलब आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है पूरी बॉडी से लेके आता है। क्लियर? सो आपको मैं बताता हूं सिंपल पूरा ओवरव्यू। ये देखो सुपीरियर वेना केवा है, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी वो एंटर होता है सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट आर्ट्रियम के अंदर। जब राइट आर्ट्रियम रिलैक्स होता है ना, तब उसके अंदर वो एंटर हो जाता है। बाद में राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट होता है और राइट वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल के अंदर सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है फ्रॉम राइट आर्ट्रियम। यहां से राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड आ जाता है सारा का सारा। ट्राइकस्पिड वाल्व होता है ताकि जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है वो वापस राइट आर्ट्रियम में ना आ जाए। क्लियर? फिर राइट वेंट्रिकल से सारा का सारा ब्लड जो है वो पल्मरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाता है। पल्मरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स के अंदर चला जाता है। समझ में आया कैसे हो रहा है? ये था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रोसेस। पूरी बॉडी से ब्लड आया, इट वेंट इनटू द सुपीरियर वेना केवा, देन केम टू राइट आर्ट्रियम और ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आया। एंड राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो पल्मरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला गया। देखो मैंने आपको इससे पहले बताया था आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टरी ऐसी है, दिस इज पल्मरी आर्टरी, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है लंग्स तक पहुंचने के लिए। क्लियर? सो पल्मरी आर्टरी ये तो हो गया। अब लंग्स में पहुंचने के बाद ब्लड प्योरीफाई होता है और ब्लड प्योरीफाई होने के बाद मींस ऑक्सीजनेटेड बनने के बाद इट एंटर्स टू द लेफ्ट आर्ट्रियम थ्रू पल्मरी वेन। मैंने आपको बोला था पल्मरी वेन में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्लियर? लेकिन यहां पे पल्मरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो एक ही ऐसी वेन है, ओनली एंड ओनली वन वेन, दैट इज पल्मरी वेन, जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो यहां पे ये दोनों आर्टरी, पल्मरी आर्टरी एंड पल्मरी वेन का थोड़ा सा उल्टा फंक्शन होता है। क्लियर? सो पल्मरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आता है जब ऑक्सीजन मींस लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स मूड में होता है, मींस इट इज रिलैक्स्ड। फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ जाता है। सारा का सारा फ्लो कहां जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। सो अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? वो ब्लड को पंप करता है, मींस हार्ट का जो पंप लब डब लब डब लब डब आप साउंड सुनते होंगे, दैट इज दिस ओनली। यहां से गया लब, फिर वापस एंटर किया डब, तो लब डब इस तरह से साउंड कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है अओर्टा की तरफ। ये देखो अओर्टा है पूरा, अओर्टा की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है और वो अओर्टा में से ब्लड फ्लो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। समझ में आया? यहां से निकला अओर्टा के पास गया। सो अओर्टा इज द मीडियम फ्रॉम विच द प्योर ब्लड दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये चीज आपको समझनी है। वन बाय वन एक एक साइड के चेंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, पहले लेफ्ट चेंबर्स देन राइट चेंबर्स। बट जो ओवरव्यू था वो मैंने आपको बता दिया, विच कैन यू कैन ऑल्सो राइट इन योर ओन वर्ड्स प्रॉपरली। पार्ट बाय पार्ट एक्सप्लेन करते रहो, भाई लेफ्ट चेंबर राइट चेंबर व्हाट हैपेंस, कहां पे क्या हो रहा है, देन यू विल गेट। देखो हार्ट है, हम लोग क्या करते हैं, दिमाग की बात अक्सर सुनते हैं, सब लोग कहते हैं हार्ट की बात सुनो, लेकिन हार्ट कुछ करता नहीं है। बट मेन थिंग इज वेयर वी फील गुड
वी शुड डू, इंटरेस्टिंग जहां लगे वो चीज करनी चाहिए, ये चीज मानना जाता है। क्लियर? सो अब एक एक पार्ट को डिटेल में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इज लेफ्ट चैम्बर। लेफ्ट चैम्बर में कौन सा ब्लड आता है आप बताओ। चलो, अभी मैंने बताया राइट चैम्बर, लेफ्ट चैम्बर, तो लेफ्ट चैम्बर में कौन सा ब्लड आता है? लेफ्ट चैम्बर में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रखना, जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके ब्लड आता है लेफ्ट चैम्बर के अंदर। सो पहले देख लेते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑफ द लेफ्ट, दैट इज लेफ्ट आर्टरियम वाया पल्मरी वेन। देखो ये रहा पल्मरी वेन्स, यहाँ पे लंग्स के थ्रू पल्मरी वेन से आता है लेफ्ट आर्टरियम में। दिस इज अपर चैम्बर ऑफ द लेफ्ट पार्ट। पल्मरी वेन एक ऐसी वेन है, ओनली एंड ओनली वन वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रखना। लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्सेस। अब लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स हुआ व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड, इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स। पहले रिलैक्स था, जब उसने ब्लड कलेक्ट किया तब रिलैक्स किया, जब कॉन्ट्रैक्ट्स while the next chamber the left ventricle relaxes so the blood is transferred to it। यानी अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड सारा आ गया बाय बाइकस्पिड वाल्व। याद रखना, लेफ्ट चैम्बर में बाइकस्पिड वाल्व होता है और राइट चैम्बर में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। और जो सेंटर है चैम्बर्स को डिवाइड करता है उसको बोलते हैं सेप्टम। सी इट इज रिटन सेप्टम डिवाइडिंग वॉल। क्लियर? When the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out of the body via aorta। Out of the body means blood is pumped out to the body, out of the body नहीं, out to the body via aorta। मतलब यहाँ से aorta से ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो aorta से सारा का सारा पंप होके ब्लड चला जाता है दूसरी बॉडीज पार्ट्स में। This what happens in the left chamber। Clear? Now right chamber। right chamber मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। क्लियर? सो दिस इज द राइट चैम्बर। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द राइट आर्टरियम वाया सुपर वेना केवा एज इट रिलैक्सेस। तो पहले राइट आर्टरियम रिलैक्स होता है तो सुपर वेना केवा से सारा का सारा ऑल द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द राइट आर्टरियम। Then as right atrium contracts the corresponding lower chamber the right ventricle dilates, मतलब रिलैक्स हो जाता है तो सारा का सारा ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। This transfer blood to the right ventricle which in turn pumps it to the lungs for the oxygenated by pulmonary artery। अब यहाँ से वो कॉन्ट्रैक्ट जब होता है राइट वेंट्रिकल, वो लंग्स को ब्लड देता है थ्रू पल्मरी आर्टरीज। सो पल्मरी आर्टरी ही एक ऐसी आर्टरी है विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दिमाग में फीड कर लो, वेन और आर्टरी एक ही वेन और एक ही आर्टरी, दैट इज पल्मरी आर्टरीज। और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मेन चीज। अब देखो आपने देखा वेंट्रिकल्स जो है नीचे, आर्टरियम की बात नहीं कर रहा हूं, राइट या लेफ्ट आर्टरियम्स की बात नहीं कर रहा हूं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल दे पंप द ब्लड टू द लंग्स और टू द बॉडी। क्लियर? सो वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू द वेरियस ऑर्गन्स, दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल। इसीलिए वेंट्रिकल्स की वॉल्स जो है थिक होती है कंपेयर टू आर्टरियम्स, ये याद रखना है। क्लियर? नाउ डिफरेंट ये तो थे राइट चैम्बर लेफ्ट चैम्बर के बारे में। वाइड राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट आर सेपरेटेड। अब आप बताओ क्यों? ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स ना हो। अगर दोनों मिक्स हो गए तो हमारे जैसे जो भी ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, जिनको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम। हमारे अंदर एफिशिएंसी जरूरी है, एनर्जी ज्यादा होनी जरूरी है, ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए। सो दोनों अगर मिक्स हो जाते हैं तो ऑक्सीजन रिच ब्लड या एफिशिएंसी हमको नहीं मिल पाएगी। सो इसीलिए सारे के सारे सेपरेट होते हैं। ये राइट साइड अगर लेफ्ट साइड है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट साइड तो डीऑक्सीजनेटेड, मींस लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल फॉर टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर मिक्सिंग। अवॉइड, उनको अवॉइड करना है ताकि वो मिक्स ना हो। क्लियर? सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। ये सेपरेशन रहेगा तो हमारी बॉडी में अच्छे ऑक्सीजन, एफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंचेगा। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स एंड हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स, मैमल्स व्हिच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि उनको ये बर्ड्स में, मैमल्स में और हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स में ये रिक्वायर्ड होता है एनिमल्स वगैरह में, ताकि हमारी बॉडी टेम्परेचर भी हमको मेंटेन करना है। सो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। क्लियर? सो दिस इज व्हाई इट टेक्स प्लेस। नाउ डबल सर्कुलेशन। अब नॉर्मली डबल सर्कुलेशन, अब हमारी बात करें तो आपने देखा, मैंने जो बताया, पहले सारी बॉडी से सारा का सारा ब्लड कहाँ आता है? हार्ट में।
फिर हार्ट से जाता है लंग्स में, और लंग्स में प्योरीफाई होके, लंग्स से क्या हो रहा है, प्योरीफाई हो रहा है, और उसके बाद फिर हार्ट में आ रहा है. सो इन अ साइकिल, एक साइकिल में हार्ट जो ब्लड है हार्ट में 2 बार एंटर हो रहा है. इट इज एंटरिंग इनसाइड द हार्ट ट्वाइस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. सो ये चीज याद रखनी है. लेकिन दूसरे एनिमल्स में क्या होता है, देखो ये देखो, सुपीरियर वेना केवा से वो जाएगा राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मरी आर्टरीज, ब्रांचेस, कैपिलरीज, लंग्स, और फिर वहां से प्योरीफाई होकर पल्मरी वेन से वापस लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये कंटिन्यू साइकिल चलती रहेगी. और एक साइकिल में 2 बार हार्ट में जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. नाउ इफ एनिमल दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर बॉडी टेम्परेचर, जो एनिमल्स खुद की बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज नहीं करते, सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मेनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट. उनके कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, 3 चैम्बर हार्ट, जहां पे थोड़ा बहुत ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है और वो चलता भी है, उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती. क्लियर. सो ये याद रखना है किसके 3 चैम्बर्ड हार्ट्स होते हैं, एम्फीबियंस एंड मेनी रेप्टाइल्स, दोज एनिमल्स विच डू नॉट नीड एनर्जी फॉर बॉडी टेम्परेचर टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर. फिर फिश, आप बोलोगे फिश में कितने चैम्बर हार्ट्स होते होंगे, डू यू नो? In fish, there are 2 chamber hearts only. Fishes, on other hand, have only 2 chambers heart to their hearts. The blood is pumped to the gills and passed directly to the rest of the body. Pump क्या होता है, वो सारे के सारे जो हार्ट ब्लड है वो डायरेक्ट गिल्स को पास होता है और गिल्स से डायरेक्टली सारे के सारे बॉडी में पास ऑन हो जाता है. इसका मतलब उसमें सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट्स होते हैं. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in the other vertebrates. जैसे मैंने बताया हमारे एनिमल्स मींस ह्यूमन बींग्स के अंदर भी 2 बार जाता है. दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. 2 बार अगर हार्ट के अंदर ब्लड ट्रांसफर हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है, एंड इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. सो बहुत सारे एनिमल्स में भी होता है, मैमल्स में भी होता है, बर्ड्स में भी होता है, और हम ह्यूमन बींग्स में तो हो ही रहा है. ये चीज याद रखनी है. क्लियर. नाउ ब्लड वेसल्स की बात करेंगे. ब्लड वेसल्स में आ जाता है आपके आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज. सो फर्स्ट हम लोग बात करें, देखो आर्टरीज जो है रेड कलर के जो आपको दिख रहे हैं दैट इज आर्टरीज, और ब्लू कलर के जो दिख रहे हैं वेन्स, और ये जो दोनों का जंक्शन है आर्टरी और वेन का दैट इज नोन एज कैपिलरीज. क्लियर. आर्टरीज से ब्लड फ्लो होता है, सिंगल सेल वॉल थिक होता है, तो कैपिलरीज में कन्वर्ट होता है. सारे के सारे कैपिलरीज में जब मिक्स होके कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है तब वो चले जाते हैं वेन्स के अंदर, वो कनेक्ट होके वेन्स बन जाते हैं. सो दिस इज arteries carry blood from the heart to various organs of the body. The blood emerges from the heart under high pressure. The arteries have thick elastic walls. देखो आर्टरीज क्या करता है, ब्लड कैरी करता है, और हार्ट से जब ब्लड आ रहा है बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के साथ आता है. क्लियर. सो आर्टरीज की वॉल्स कंपेयर टू वेन्स थिक और इलास्टिक होती है. थिक वॉल्स और इलास्टिक वॉल्स होते हैं. आर्टरीज की वॉल्स थिक होती है, याद रखना. वेन्स collect the blood from the different organs and bring it to heart. They do not need thick walls because the blood is not under pressure. Instead they have valves. अब वेन्स के अंदर क्या है, हाई प्रेशर ब्लड आता ही नहीं है, बॉडी से आ रहा है, सो उनको थिक वॉल तो नहीं चाहिए, बट वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं. दे हैव वाल्व्स. क्यों? ताकि ब्लड रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो ना हो. रिवर्स डायरेक्शन इन शॉर्ट कि ब्लड हार्ट की तरफ पहुंचने की जगह रिवर्स अपनी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फ्लो ना हो. सो दैट्स व्हाई इट अवॉइड्स the reverse direction of the blood. On reaching an organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all individual cells. मैंने बोला था आपको कि arteries जब दूसरे दूसरे cells, हर एक individual cells के पास blood पहुंचाना है तो they divide into branches of single cell thick. The smallest vessels that have walls which are 1 cell thick, एक cell thick wall होती है, they are known as कैपिलरीज. दे आर कॉल्ड एज कैपिलरीज. वो कैपिलरीज होते हैं, दे आर जंक्शन ऑफ आर्टरीज एंड वेन. ये चीज भी आप याद रख सकते हो. द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स. और कैपिलरीज जब जिसके अंदर ब्लड आ जाता है उसके बाद वो सारे का सारा जॉइन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आ गया तो वो जॉइन होकर वेन्स में इमर्ज हो जाती है, वेन्स के अंदर मर्ज हो जाती है. क्लियर. दे क्रिएट वेन्स. सो आर्टरीज डिवाइड होती है कैपिलरीज में और कैपिलरीज कंबाइन होकर वेन्स बनाते हैं. ये चीज याद रखना है. क्लियर. देन डिस्कस करें. सो मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स. अब देखो कभी लीकेज होता है, आपको इंजरी भी लगती है, चोट भी लगती है. सो पता है कभी कभी अपने आप जो ब्लड क्लॉट हो जाता है और अपने आप मतलब वो चोट ब्लड फ्लो होना आउट. देखो ब्लड फ्लो होगा तो हमको नुकसान होगा, ब्लड फ्लो होना नहीं चाहिए बॉडी में से. सो इंजरी जब होती है तो 1-2 दिन में वो ब्लड क्लॉट होकर रुक जाता है. दैट इज
डन बाय प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स वहाँ पे ब्लड क्लोट कर देता है ताकि ब्लड हमारी बॉडी से बाहर फ्लो ना हो और हमारी लीकेज या इंजरी ठीक हो जाए. क्लियर? दैट इज डन बाय प्लेटलेट्स. Think about the situation when we are injured and start bleeding. Naturally, the loss of blood from the system has to be minimized. एक तो ब्लड को रोकना भी जरूरी है और लीकेज होगा तो हमारा जो ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, हमारा सिस्टम जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा. क्लियर? सो कैसे भी करके वो इंजरी को रोकना पड़ेगा, उस इंजरी को ठीक करना होगा. इन एडिशन, लीकेज वुड लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम. जो मैंने बताया कि एक तो लीकेज होगा, ब्लड फ्लो होगा, उसको रोकना है, प्लस लीकेज होगा तो हमारा पंपिंग सिस्टम यानी हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, ब्लड को प्रॉपरली कहीं पे भी रिड्यूस हो जाएगा, पहुंचा नहीं पाएगा. सो दैट हैज टू बी आल्सो स्टॉप. वो काम है प्लेटलेट्स का. सो टू अवॉइड दिस, द ब्लड हैज प्लेटलेट सेल्स विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दिस लीक बाय हेल्पिंग टू क्लोट द ब्लड एट दिस पॉइंट ऑफ इंजरी. यानी इस सिचुएशन में हमारे पास प्लेटलेट्स हैं जो उस जगह पे पहुंच जाते हैं और ब्लड क्लोट होने से बचा लेते हैं. मीन्स ब्लड क्लोट हो जाता है ताकि ब्लड फ्लो होने से रुक जाए, लीकेज बढ़ जाए. क्लियर? सो दिस इज हाउ प्लेटलेट वर्क्स. प्लेटलेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो चीज आपको ध्यान रखनी होगी. देन लिम्फ. अब लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, सेम टू सेम है ब्लड की तरह, लेकिन अब इसमें क्या है, कैपिलरीज जो है, कैपिलरीज में क्या है, छोटे छोटे होल्स होते हैं. तो वो होल्स के थ्रू कभी कभी लीकेज होके ब्लड गिरना या कोई फूड मटेरियल्स व्हाटएवर जो भी चीज़ है वो गिरती है तो वो लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाता है. क्लियर? वो एक लिम्फ लिक्विड बन जाता है जो है सेम टू सेम प्लाज्मा जैसा, मतलब लेकिन कलरलेस है. देखो मैं देख लेते हैं किस तरह से. ये रहा, देखो ये आर्टरीज, वेन्स और उनका जंक्शन कैपिलरीज का, उसके बीच में आता है ये लिम्फेटिक सिस्टम. जो भी लीकेज हो रहा है कैपिलरीज में से, वो लीकेज कलेक्ट करके वापस वेन्स में या ब्लड में पहुंचा दिया जाता है. देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ विच इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन और इट इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड. ठीक है? थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू टू फॉर्म लिम्फ. मतलब जो पोर्स स्पेस है कैपिलरीज वगैरह के अंदर, जो स्पेस है उसके अंदर से कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स एस्केप यानी निकल जाते हैं और वो लिम्फ बनाते हैं. ठीक है? इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ द बॉडी, प्लाज्मा ऑफ द ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन. होता सेम प्लाज्मा की तरह ही है लेकिन ये कलरलेस है और उसके अंदर प्रोटीन भी कम होता है कंपेयर टू प्लाज्मा. ये चीज आपको समझनी है. समझ में आया? ये चीज ध्यान है. देखो चीजें जो मैं बता रहा हूँ इट शुड बी नोटेड पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आप जब अपना आंसर खुद लिख रहे हो तब ये सब चीजें, ये पॉइंट, देखो हार्ट है तो हार्ट का पूरा अलग आएगा, लिम्फ है तो लिम्फ का अलग पूछेंगे. सो दैट इज वाई एक एक पॉइंट समझना जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर आपके दिमाग में होना चाहिए. कैसे आंसर लिखना है, किस तरह से, वो सब कुछ समझना जरूरी है. क्लियर? लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस which join to form large lymph vessels that are finally opens into larger veins. lymph drains into lymphatic capillaries. क्या lymphatic capillaries मतलब जैसे हमारी नॉर्मल ब्लड कैपिलरीज थी वैसे lymphatic capillaries होती है जो इंटरसेलुलर से विच जॉइंट्स टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स एंड दैट फाइनली ओपन्स इनटू लार्ज वेन. ये सब कैपिलरीज जो लिम्फ कलेक्ट करती है वो फिर जाके मीट कहाँ होती, वो जाती तो वेन्स के अंदर ही है. Lymph carries digested and unabsorbed fat from intestine and drains excess fluid from the extracellular space back into the blood. यानी घूम फिर के वो सारा का सारा जो एक्स्ट्रा चीजें जो डाइजेस्टेड वेस्ट है, डाइजेस्टेड मटेरियल या एब्जॉर्ब फैट्स है इंटेस्टाइन का, वो सब कैरी करके ब्लड में डाल देते हैं ताकि कोई भी चीज नुकसान ना हो, हमारी बॉडी को भी कोई डिफेक्ट डैमेज ना पहुंचे. सो दिस इज द वर्क ऑफ लिम्फ. क्लियर? समझ में आया? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ मींस नॉट ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स. देखो आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वैसे तो जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम दो ऐसे एक मतलब यू बोल सकता हूँ वेस्कुलर टिश्यू है जो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैरी करते हैं. जाइलम जो है वाटर्स एंड मिनरल्स कैरी करता है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस या ट्रांसपीरेशन, और फ्लोएम जो है वो फूड मटेरियल्स जो लीफ फोटोसिंथेसिस के टाइम फूड बनाती है वो रूट्स तक पहुंचाता है और ऊपर टिप तक भी पहुंचाता है. जाइलम यूनिसेलुलर है, वो रूट से लेके पूरी बॉडी तक लेके जाता है ऊपर तक, लेकिन फ्लोएम जो बाई डायरेक्शनल है क्योंकि वो लीफ से रूट तक भी ले जाता है और लीफ से टॉप पे भी लेके जाता है. सो इस तरह से कुछ वर्क होता है.
समझो इस चीज को, क्लियर? जाइलम एंड फ्लोएम, क्लियर? सो रूट से ऊपर तक जाता है जाइलम, और फ्लोएम जो है लीफ से ऊपर तक भी जाता है और नीचे भी लेके आता है, सो बाई डायरेक्शन. Absorption of minerals occurs through the roots. If the distance between the soil containing organ and chlorophyll containing organ are small, energy and raw materials can easily diffuse to all parts. अगर हाइट छोटी है, डिस्टेंस इज स्मॉल, सो डिफ्यूजन प्रोसेस इनफ है. डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ सारा का सारा वाटर मिनरल्स जो भी है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो सॉइल में अगर हायर कंसेंट्रेशन होता है, ये ऑब्वियस सी बात है, रूट्स को ज्यादा वाटर और मिनरल चाहिए, तो वो धीमे धीमे डिफ्यूजन के प्रोसेस, अगर हाइट छोटी है तो चला जाएगा, बट हाइट बड़ी हुई तो सिर्फ डिफ्यूजन कैरी नहीं हो सकता. सो इफ द डिस्टेंस बिकम लार्ज, डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स इन द लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स. अ प्रॉपर सिस्टम इज एसेंशियल, अ प्रॉपर सिस्टम इज रिक्वायर्ड. एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए, तो उसका क्या करेंगे? सो फॉर दैट प्रॉपर सिस्टम चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, देखो, प्रॉपर सिस्टम इज एसेंशियल, तो उसके लिए हमको क्या करना है, जो ट्रांसपिरेशन पूल होता है, मतलब इसमें क्या होता है, इवोपरेशन जब होता है लीव्स के ऊपर इवोपरेशन होने की वजह से वो पूरा का पूरा मटेरियल ऑब्जर्व करते हैं, क्लियर? पानी जो है इवोपरेट हो जाता है, तो वो एक पुल क्रिएट करते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल के, जहां पे पानी की कमी थी, मतलब उड़ गया पानी, इवोपरेट हो गया, तो वहां पे पानी वापस आ जाए, वाटर वापस आ जाए, तो उसकी वजह से एक सक्शन पुल क्रिएट होता है. सो दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. टू पाथवेज आर, वन जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल, एंड द अदर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स. क्लियर? दोनों मैंने आपको बताया, जाइलम वाटर एंड मिनरल्स कैरी करता है, फ्लोएम जो है फोटोसिंथेसिस से जो खाना बना है वो. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन जाइलम. If xylem tissues, vessels and arcades of roots, stems and leaves are continuous system of water conducting channel reach all parts. Xylem के अंदर क्या होता है, xylem tissue, vessels और tracheids जो roots, stem और leaves से साल continuous रख के water को हर एक body part तक पहुंचाते हैं. There is steady movement of water into root xylem, but by diffusing creating column of water that is steadily pushed upward. लेकिन जैसे मैंने बोला, ये डिफ्यूजन प्रोसेस ठीक है, नॉर्मल तक चले जाएगा, हाइट कम है तो कैरी ऑन होगा, लेकिन हाइट बढ़ी तो मैंने क्या बोला, ट्रांसपिरेशन पूल, सक्शन पूल क्रिएट करना पड़ेगा. सो हाउएवर दिस प्रेशर इज नॉट इनफ टू मूव वाटर ओवर हाइट तक नहीं पहुंचा सकता. सो अ सिस्टम यूज्ड हियर इज वाटर लॉस थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल इन द लीफ. मतलब सपोज मैं जस्ट एग्जांपल बताता हूं कि यहाँ पे सपोज लीफ है एक जस्ट, और ये पूरा एक कैरी ऑन हो रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे वाटर था, वो उड़ गया, स्टोमेटा के थ्रू इवोपरेट हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर रिक्वायर्ड होगा, तो यहाँ से वाटर यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, तो इसकी वजह से ये पूरे जाइलम के अंदर एक सक्शन पुल क्रिएट होगा. सो दिस विल कंटिन्यूसली सकिंग द वाटर फ्रॉम द रूट्स, तो वो एक हेल्पफुल होगा ट्रांसपिरेशन के तौर पे. इनफैक्ट इवोपरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ लीफ क्रिएट्स अ सक्शन पुल विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल ऑफ रूट्स. ठीक है, वो वाटर पुल करता है सक्शन पुल की वजह से. The loss of water in the form of water vapor from aerial parts of the plant is known as transpiration. मैंने already बोला, जो water evaporate हो रहा है that is known as transpiration. The transpiration pull becomes the major driving force in the movement of water in this xylem. Xylem में major driving force कौन बन जाता है, transpiration, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा affordable है for heighted plants. क्योंकि चलो small plant है तो diffusion हो जाएगा, लेकिन heighted plant के लिए वही होगा. Then जो है फ्लोएम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जो लीव्स बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस की वजह से, तो वो कैसे, तो फ्लोएम के अंदर जो है सीव ट्यूब्स होती है, सीव्स एंड सीव ट्यूब्स आर प्रेजेंट विच ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. ठीक है, फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट बना है उसको ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्ट करना, दैट इज ट्रांसलोकेशन. एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम. ये होता कहां पे, फ्लोएम के अंदर होता है. क्लियर? नाउ बिसाइड दिस प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स एमिनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस. एमिनो एसिड्स और दूसरे सब्सटेंसेस भी ट्रांसपोर्ट करता है. द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स बोथ इन अपवर्ड डाउन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन. द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब्स with the help of adjacent companion
सेल्स बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर सीव ट्यूब्स हेल्प करते हैं। सीव ट्यूब्स क्या होते हैं, छलनी जैसे होती है ना हमारे छलनी वाले, तो छलनी की तरह होती है। सो कुछ जो मटेरियल्स को जाने देना है वो मटेरियल्स को ही जाने देते हैं, बाकी रेस्ट वहीं पे रह जाते हैं। क्लियर? और अपवर्ड दोनों डायरेक्शन, सो बाई डायरेक्शन बोल सकते हैं। मटेरियल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। किसी की चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, दैट इज यूज फ्रॉम एटीपी। सो सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एटीपी एनर्जी यूज की करते हैं। दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर of the tissue causing water to move into it. This pressure moves the material in the phloem to tissue which have less pressure. This pressure moves the material in the phloem to the tissue which have less pressure. Less pressure वाले tissues तक वो पहुंचाते रहते हैं continuously. Clear? This allows the phloem to move materials according the plant's needs. For example, in the spring, sugar stored in root or stem tissue would be transported to birds which need energy to grow. यानी ये एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, और जिस भी पार्ट को प्लांट के जिस पार्ट को ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वहां पे वो एनर्जी पहुंचा देते हैं। जैसे स्प्रिंग के टाइम, अब जब नया प्लांट मीन्स बर्ड्स ग्रो होते हैं, कली खिलती है, तो कलियों को ज्यादा एनर्जी चाहिए कंपेयर टू द ओल्ड प्लांट्स जो ओल्ड लीव्स वगैरह है उनको। सो सारी की सारी एनर्जी मैक्सिमम जो एनर्जी है वो सारी एनर्जी वहां पे कलियों की तरफ, बर्ड्स की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। बर्ड मतलब उड़ने वाली बर्ड नहीं, बर्ड्स मतलब कली। क्लियर? प्लांट्स में जो कली खिलती है, न्यू कलीज, उनकी तरफ एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर कर दी जाती है। क्लियर? सो दिस वाज हाउ ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस इन जाइलम एंड फ्लोएम। इन नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 5, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सक्रीशन सिस्टम। सो हमने हर एक पार्ट को डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट पार्ट भी आप जरूर देखेंगे, और इस पार्ट के लिए डिटेल्स एग्जाम भी होगी। सो प्लीज प्रिपेयर वेल, और नेक्स्ट पार्ट को प्रिपेयर करके उसकी भी एग्जाम होगी। सो प्रिपेयर वेल बिफोर कमिंग। सो थैंक यू वेरी मच, और दूसरों के साथ भी शेयर करते रहो। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि दूसरे भी पढ़ सके। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच।